پوائنٹس پر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے طالب علم کے قتل کا نوٹس لے لیا، پولیس چیف سے رپورٹ طلب، ملزمان کی جلد گرفتاری اور والدین کو تفتیش سے آگاہ کرنے کا بھی حکم، اسٹریٹ کرائم کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت شہر کو پرامن بنانے کے لیے متحرک، شہر کا امن تباہ کرنے والے 275 ڈاکوؤں کے سر کی قیمت مقرر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق 11 ڈاکوؤں کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی میں فاروق، فیصل پٹھان، شکیل بلوچ کے سر کی قیمت مقرر کی گئی۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ہلکا سا ریلیف، حکومت نے پیٹرول 10 روپے لیٹر سستا کر دیا، پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے ہو گئی، ڈیزل کی قیمت میں بھی 7.5 روپے کمی، لائٹ ڈیزل بھی 10 روپے لیٹر سستا کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، سندھ حکومت کی تیاریاں مکمل، انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر کیمرے لگائے جائیں گے، کراچی اور حیدرآباد کے کمشنرز کو پولنگ اسٹیشنز پر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو شیڈیول، چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کراچی کی خوبصورتی بحال کرنے کا منصوبہ، بلدیہ شرقی جیل روڈ فلائی اوور نیو ایم اے جناح روڈ سے متصل جگہ پر گرین بیلٹ تعمیر کرنے کا حکم، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ رحمت اللہ شیخ کی سرکاری خالی جگہوں پر فوری تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایت۔ محکمہ انسداد تجاوزات، بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شارع پاکستان، ایمپریس مارکیٹ اور ایم اے جناح روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، سینکڑوں ٹھیلے، پتھارے اور پبلک مقامات پر رکھی گئی تجاوزات قبضے میں لے لی، سڑکیں کشادہ اور فٹ پاتھ کلیئر ہو گئے، تجاوزات ختم ہونے سے شہر کا تاریخی حسن بحال ہونے لگا۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، احتجاج کرنے والے علاقہ مکینوں پر پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد افراد گرفتار، ہیوی مشینری سے دیواریں توڑ دی گئیں۔ ادھر مجاہد کالونی میں بھی انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن، دوران آپریشن کرین کے نیچے دب کر ایک شخص جاں بحق، شہری کی شناخت اشتیاق بھولو کے نام سے ہوئی، پولیس حکام کا کہنا ہے واقعے سے اینٹی انکروچمنٹ کا کوئی تعلق نہیں۔ گھر میں جگہ نہیں تھی، کیا کریں، کرائے پہ مکان بہت مہنگے ہو رہے ہیں، غریب بچہ ہے میرا، نہ کمائی ہے نہ دمائی ہے، میدان کے اندر لا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے۔ کل مغرب کے ٹائم ہے نا، وہ اتنا رویا ہے، میرے گلے لگ کے اتنا رویا ہے، بولا میرے بچے حیدرآباد میں، میں ادھر ہوں، بولا میرا دل نہیں لگ رہا، شاید میں یہاں پر مر جاؤں گا نہیں، یہاں سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ لیاری نرسنگ کالج کے طلباء کا سندھ سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا، طلباء سابق پرنسپل شبانہ بلوچ کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کالج میں غنڈہ عناصر نے طلباء کا کالج میں داخلہ بند کر دیا ہے، کالج میں غنڈہ گردی اور منشیات فروشی عروج پر ہے۔ ہم لوگ مسلسل 5 سے 6 ماہ ہو گئے، ہم لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں ڈیلی روڈ پہ آ کے اور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں پرنسپل کے اگینسٹ۔ اب میڈم کا لیٹر نکلنے کے باوجود، ٹرانسفر ہونے کے باوجود، 15 ڈے کا اسٹے آرڈر لینے کے باوجود ابھی تک وہ کالج پہ قبضہ جمائے بیٹھے۔ کبھی اسکول آئے نہ پڑھایا، گھر بیٹھے تنخواہ لیتے رہے، 250 سے زائد اساتذہ گھوست ملازم نکلے۔ ڈیوٹی چور اساتذہ کا تعلق 3 اضلاع سے ہے، محکمہ اسکول تعلیم کا ڈیوٹی چور اساتذہ کو شو کاز نوٹس، وضاحت مانگی۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ایچ آر اینڈ ٹریننگ اچانک دورہ، مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا، اساتذہ کے ڈیش بورڈ کا جائزہ لیا، نئے بھرتی اساتذہ کے جوائننگ تنخواہوں کے مسائل جلد حل کرنے کا حکم، ڈیٹا بیس کو بروقت مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ ڈاؤ یونیورسٹی کا 12واں کانوکیشن، 2082 طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم، پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 111 طلباء کو طلائی تمغوں سے نوازا گیا، 27 ایم فل اور 4 پی ایچ ڈی طلباء و طالبات کو بھی ڈگری تفویض کی گئی۔ معروف سرجن پروفیسر محی الدین اور پروفیسر فیصل ڈار کو اعزازی ڈگری سے نوازا گیا، والدین اور طلباء کا ڈگریاں ملنے پر خوشی کا اظہار۔
प्रोफेशन एक्चुअली डायटेटिक्स है एंड अभी पाकिस्तान में ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड कि आई एम जस्ट लीडिंग पर्सन। बहुत मेहनत की है इसके लिए हम लोगों ने, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, पेरेंट्स की दुआ रही है हमारे साथ ही साथ आपकी स्ट्रगल, मेहनत, रातों को जागना, पढ़ना, 10-10 घंटे पढ़ना, इस तरह जो मतलब एक जर्नी होती है, फिर साथ में कभी बंक करके दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो मतलब हर तरह की चीज़ें होती हैं। बढ़ती महंगाई की दौड़ में चावल भी शामिल। एक हफ्ते में मुख्तलिफ कैटेगरीज के चावल 40 रुपये फी किलो तक महंगे हो गए। सीरा चावल 190 से बढ़कर 260, बासमती चावल की कीमतों में भी 40 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ। एक माह में चावल 70 से 80 रुपये किलो महंगे हो गए। ये इसका मतलब क्या है कि पीछे से माल नहीं आ रहा है, क्या वजह है? कोई बोलता है एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई बोलता है ये हो रहा है। तो एक्सपोर्ट करना है तो भाई पहले पाकिस्तान को तो सोचो कि पाकिस्तान में भी गरीब अवाम है, यहाँ 80% गरीब अवाम है बेचारी। तो ये तो देखो तो सही कि कितना दालों में बढ़े हुए हैं, चीनी देखो तो चीनी में बढ़ गए, चावल देखो तो चावल में बढ़े गए। आदमी क्या करेगा, किस तरीके से जिए? दालों के कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला, होलसेल ग्रोसरी के जनरल सेक्रेटरी ने खतरे की घंटी बजा दी। फरहत सिद्दीक कहते हैं दालों की कीमतें 150 से 170 रुपए तक पहुंच गईं। ताजरों का दालों की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। होलसेल मार्केट में ताजर बिरादरी के मसाइल बढ़ने लगे। महंगाई से परेशान ताजर फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों से भी तंग। पसमानदा इलाकों में खुला तेल फरोख्त न होने पर ताजर परेशान। सदर कोरंगी होलसेल मार्केट कुर्बान अली कहते हैं कमिश्नर कराची से इजाज़त के बावजूद तंग किया जा रहा है। कारोबार मुश्किल हालात में है, हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। मलेशिया से जो ऑयल आ रहा है, ओलियन ऑयल, पोम ऑयल वगैरह जो भी है, सब मलेशिया से ज़्यादा वही ऑयल घी मिल में जा रहा है। वही जो है वहाँ से पोर्ट से लोड करके सेल पॉइंटों पर आ रहा है पूरी कराची में। जब दोनों एक ही माल हैं और दोनों मियारी हैं तो फिर खुले तेल पे पाबंदी क्यों? मारूफ ताजर मिर्जा इश्तियाक बे की नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ताजर बरादरी के मसाइल से आगाह किया। नून लीग बिजनेस फोरम के मरकजी सदर से मुलाकात में नवाज शरीफ ने जल्द वापसी का इंदिया दे दिया। कहा कराची का दौरा और ताजरों से मुलाकात भी करूंगा। काज़ाकिस्तान के साथ तिजारत के मामले पर अहम पेशरफ्त। काज़ाक सफ़ीर की FPCCI इजलास में शिरकत। इजलास में मेंबर कस्टम, ट्रांजिट ट्रेड समेत मुख्तलिफ बैंकों के सदूर की शिरकत। चेयरमैन पाक काज़ाकिस्तान बिजनेस काउंसिल महमूद अल हसन कहते हैं पाकिस्तान के साथ तिजारत के बहुत से मौक़े हैं। एजाज़ी काउंसिल जनरल शम्सुर रहमान का फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर्स में तिजारत के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस बहरान भी बढ़ गया। सुईसदन गैस कंपनी को मजीद 50 MMCFD शॉर्टफॉल का सामना। तर्जुमान सुईसदन गैस कंपनी कहते हैं गब्बर्ड गैस फील्ड अचानक अखराज के बायस कमी हुई। शहरियों को गैस प्रेशर्स में कमी का सामना हो सकता है। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन की अदायगी 30 दिसंबर को करने का फैसला। 31 दिसंबर को इतवार 1 जनवरी 2023 को बैंक में छुट्टी होगी। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध भर के वकला के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस की मद में 12 करोड़ रुपए का चेक देने की तकरीब। मुशीर कानून बराए वज़ीर आला मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी शिरकत। कहा हेल्थ इंश्योरेंस वकला की फलाह के लिए मस्बत कदम है। वकला ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 44 साल से बगैर शहरियत के पाकिस्तान में मुकीम खातून का इंकशाफ। खातून शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। सारा रियाज ने 1978 में रियाज नामी पाकिस्तानी शहरी से शादी की। वजारत दाखिला में शहरियत के लिए दरख्वास्त दी, अभी तक फैसला नहीं हुआ। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। कौमी एयरलाइन में एक बार फिर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। लाजमी सर्विस एक्ट 6 माह के लिए नाफिज होगा। लाजमी सर्विस एक्ट के दौरान PIA के तमाम मुलाजमीन काम से मना नहीं कर सकेंगे। लाजमी सर्विस एक्ट कप्तानों, फ़ज़ाई मेज़बान समेत तमाम मुलाजमीन पर नाफिज होगा।
12 साल लड़की के साथ ज्यादती और कत्ल का केस मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। बारह साल बच्ची को मुबैना अगवा करके शादी करने का केस मुबैना मौविया अदालत में पेश। मुझे अगवा किया गया था, अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। मुबैना मगविया का अदालत में बयान। मुलजिम दानियाल ने मुबैना मगविया से पसंद की शादी करने का दावा किया था। अदालत ने मगविया को वालिदैन के साथ जाने का हुक्म दे दिया। बच्चों की हवालगी और अखराजात से मुताल्लिक केस मारूफ अदाकार फिरोज खान और साबिका अहलिया अदालत में पेश। फिरोज खान ने अलीज़े को वापस किए गए सामान की फहरिस्त जमा करवा दी। अदालती अहकामात पर फिरोज खान की बच्चों से मुलाकात करवाई गई। केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अराजी पर कब्जे के खिलाफ केस डिप्टी कमिश्नर SSPE सिंध हाई कोर्ट में पेश। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की नफरी नहीं मिली, DC शर्की का जवाब। अदालत की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट 15 फरवरी तक पेश करने की हिदायत। इलेक्शन करीब आते ही बल्दियाती नुमाइंदे मुतहर्रिक इलाकों के मसाइल भी हल करने के लिए पुरज़्म। सदर टाउन UC 13 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का हल्के का दौरा। वसीम जदून और हबीब कलीम का कहना था पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलाके में काम करवाए, ग्रीन बेल्ट समेत कचरे, गंदगी और सीवरेज के मसाइल को हल किया। स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 557 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,179 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखने को मिला। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये 71 पैसे पर बरकरार रहा। मुल्क की मईशत तबाह करने में इमरान खान का अहम किरदार। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील इनाम मेमन के इमरान खान पर तनकीदी नश्तर। कहा इख्तिदार की हवस का पुजारी कौम के पैसों पर अय्याशी करता रहा। जादू टोने से हुकूमत करने वाला इदारों पर तनकीद कर रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी मुल्क के इदारों को हदफ तनकीद नहीं बनाया। सईद गनी बोले इमरान खान ने गलत बयानी से कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। कराची वोटर एंड सीवरेज बोर्ड में CBI इलेक्शन मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट 2905 वोट लेकर पहले नंबर पर। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट 2611 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इलेक्शन में वोटर बोर्ड की 9 यूनियन ने हिस्सा लिया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन ने वोट डाले, जिसका फैसला इलेक्शन के दूसरे दौर के बाद किया जाएगा। सफारी पार्क में हथनी, मलिका और सोनिया की सालगिरह। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की खुसूसी शिरकत। कामरान टिसोरी और सैफुर रहमान ने हथनियों की सालगिरह का केक काटा। सोनिया और मलिका को 2007 में तंजानिया से लाया गया था। गवर्नर सिंध ने कहा ऐसी तकरीब से कराची के शहरियों को अच्छी तफरीह मैसर आएगी।